Hello everyone. In this video, we will see the integration by substitution, and in fact, it is integration by taking common from bracket. This is the most popular variety. The most popular variety. Most popular variety of integration by substitution method means frequently they are asking the questions every year in JEE mains examination on this particular variety only. And what is the name of this particular variety? The integration by taking common from bracket. Okay, after taking common, what we have to take the common? We have to take the highest power of the variable. Correct, highest power of the variable common from the bracket. Okay, from the bracket. And after taking that highest power common from the bracket of the variable, then we substitute what is remaining there in the bracket. Got it? So these are the two basic examples coming from the NCERT books. Okay, miscellaneous exercise. The first one is integration of dx upon x की power 4 minus 1. So this is the bracket, correct? Okay, and here this is the bracket. So bracket can be in the numerator or in the denominator or in both also, correct? So we have to take the common from the bracket, and what we have to take the common? We have to take common the highest power of variable. Variable is x here, so x की power 4 is there. So therefore this can be written as dx upon x into x की power 4. I have taken the x की power 4 common, correct? So this is what 1. This is 1 upon x की power 4. Okay, 1 upon x की power 4 you should write like that, x की power minus 4. This is the way to simplify this integration easily. Okay, and this what, x की power 5. Now this becomes x की power 5, and also x की power 5 is in denominator, so give this to the numerator, that is x की power minus 5. So this is the way we can solve this integrations very easily. Got it? Now I can substitute, put 1 minus x की power minus 4 equal to t. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 x की पावर एक कम हो जाएगा minus 5 का dx, that is equal to dt. Now you can see that there is x की power minus 5 dx is 1 by 4 dt. So this integration is 1 by 4, ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया और ये आपका t हो गया. So this is 1 by 4 log of t. 1 by 4 log of t is what? ये हो गया आपका आंसर. अब यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन रहेगा. सिंप्लीफिकेशन सिंपल सा, दिस इज 1 by 4 log of 1 minus 1 upon x की पावर 4 प्लस का c प्लस का c. और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं इसको. और सिंप्लीफाई कैसे किया? 1 by 4 log of x की पावर 4 minus 1 upon में x की पावर 4 plus c. So this kind of simplification you can do very easily, but the funda is that. What is funda? This is the integration by taking common from the bracket. This is the bracket, and we have to take common, that is highest power of variable x. What is that? X की power 4. So I have taken the x की power 4. So this becomes x की power 5 ना. With this x की power 5 को हम ऐसे लिखेंगे न्यूमरेटर में, x की पावर minus 5, और इसको भी यहाँ x की पावर minus 4. After taking common, now we will substitute what is left there in the bracket. What is left? 1 minus x की पावर minus 4. करेक्ट? इसको हमने t सब्सटीट्यूट कर देना है. फंडा क्लियर है? करेक्ट है. Coming to the second one. Second one, you can see that there is a bracket in numerator at this time. Okay, so we will take x की power 4 is the highest power, so therefore x की power 4, but with 1 by 4 ना, पावर 1 by 4 ये कॉमन आएगा. फाइनली आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 कॉमन आ गया, x की पावर 4 इनफैक्ट कॉमन आया है, बट विथ 1 की उसकी पावर 1 by 4, तो x. सो दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर 1 by 4. I said that you should write this like that, 1 upon x की पावर 3. 1 upon x की पावर 3 is x की पावर minus 3. In that way only you have to write down.
दिस इज एक्स की पावर 5. सो यहाँ नाउ एक्स की पावर 4, दिस एक्स की पावर 4 now written as x की power -4 in the numerator and this is dx. That's it. Okay, हो गया काम. Simply put कर दो. क्या put करेंगे? What is there in the bracket? Okay, that is equal to t. So this is what 3x की power -4 dx equal to dt. You can see that x की power -4 dx की वैल्यू आ गई. Correct. So therefore this integration is 1 by 3. Okay, and this is what t की power 1 by 4 का dt. So this is 1 by 3 t की power 1 by 4 plus 1 कितना 5 by 4. करेक्ट. t की पावर 5 by 4 डिवाइडेड बाई 5 by 4. 4 को मैं यहाँ दे देता हूँ. सो दिस इज सिंपली 4 by 15 t की पावर 5 by 4 का प्लस का c. पुट द वैल्यू ऑफ t नाउ. What is t? T is, so this is 4 by 15. T is 1 minus x की power -3 की power 5 by 4. Simplification. 4 by 15. This is 1 minus 1 upon x cube की power 5 by 4. Correct. Again, I can simplify. This is 4 by 15. This is x cube minus 1 upon x cube की power 5 by 4. Plus का c. It's simple, very simple. So what we did, we have taken the highest power of variable, which is x की power 4, out from the bracket, but it will come x की power 4 with the power 1 by 4, that is simply x. करेक्ट है. सो x डिवाइडेड बाई x की पावर 5. यहाँ डिनोमिनेटर में x की पावर 4 रहेगा, जिसको मैं x की पावर -4 लिख दूंगा न्यूमरेटर में. गॉट इट. देन आफ्टर टेकिंग द कॉमन आई हैव टू सब्सटीट्यूट दिस what is remaining there in the bracket. Okay, and then we can solve it very easily. Let's do some PYQs. Now coming to this JEE Mains 2015 questions on this particular variety. As I said that this variety is most popular in the integration by substitution method, where we have to take common from the bracket, highest power of variable, that we have to take common. Correct. I am not giving the options over here, but now what is that? This is the bracket. What is the highest power? X की power 4. So therefore dx, पहले से ही x स्क्वायर है, x की पावर 4 और उसकी पावर 3 by 4 आएगा, तो x की पावर 3 आएगा आउट में. करेक्ट. तो ये बनेगा 1, और इसको मैं कैसे लिखना है? x की पावर -4 3 by 4. ये बन गया x की पावर 5. x की पावर 5 को डिनोमिनेटर से उठा के यहाँ दे दो न्यूमरेटर में, सो दैट इस पूरे का वैल्यू मेरे पास में मिल जाएगा. इस पूरे का वैल्यू dt के टर्म्स में कुछ भी आ जाएगा. करेक्ट है. 1 by 3 1 by 4 समथिंग लाइक दैट. तो आपके करना क्या है? आपको इस बार पुट कर लेना है जो अब ब्रैकेट में रिमेनिंग है आफ्टर टेकिंग दी कॉमन. सो क्या करेंगे? पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे? पुट 1 plus x की पावर -4 इक्वल टू t. तो -4 x की पावर -5 dx दैट इज इक्वल टू dt. एक पावर कम हो जाता है ना डिफ्रेंशिएशन में. तो आपने देखा क्या? x की पावर -5 dx, x की पावर -5 dx का वैल्यू आ गया, दैट इज -1 अपॉन 4. दिस इज dt अपॉन t की पावर 3 by 4. दिस इज -1 अपॉन 4 t की पावर -3 by 4 का dt. करेक्ट है. दिस इज -1 अपॉन 4 t की पावर 1 by 4 और t की पावर 1 by 4. करेक्ट. तो 1 by 4 1 by 4 कट गया. तो फाइनली आपके पास में -t की पावर 1 by 4 आ गया. एंड आपको प्लस का c बाद में लिखते हैं. करेक्ट. t को रिप्लेस कर दो. दिस इज माइनस, एंड व्हाट इज t? t इज 1 प्लस x की पावर -4 इसकी पावर 1 by 4. तो व्हाट इज दैट? 1 प्लस x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 4. This is 1 by 4 plus c is your answer. I can also simplify this. Correct. And it is very easy to simplify. So this is what? minus 1 plus x की पावर 4 की पावर 1 by 4. और अगर x की पावर 4 की पावर 1 by 4 करूँगा तो नीचे में x आ जाएगा प्लस का c. ये भी आपका आंसर हो सकता है. करेक्ट. ठीक नहीं? तो वेरी सिंपल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को देखिए. ये JEE Mains 2019 का. इनफैक्ट what I am saying that
this is the most popular variety of integrations, means they have been asking frequently every year. Okay, so this is what integration of 3 into x की पावर 13 प्लस 2 into x की पावर 11, और ये ब्रैकेट है. ब्रैकेट दी क्या क्या ब्रैकेट के अंदर में ये है जिसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 4 है. दैट्स इट. करेक्ट है. ये x की पावर 4 को बाहर लूंगा विद द पावर 4, मतलब x की पावर 16 बाहर निकलेगा. खत्म हो गई कहानी. तो ये हो जाएगा 3 x की पावर 13 प्लस 2 x की पावर 11. यहाँ से हमने x की पावर 4 को बाहर लिया, मतलब x की पावर 4, इसकी पावर 4 ये बाहर आएगा, मतलब x की पावर 16 बाहर आएगा. तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 x की पावर -2. डिनोमिनेटर में x की पावर 4 दे दो, 1/x² होगा. मैंने बोला है हमेशा राइट डाउन लाइक दैट. तो ये हो जाएगा x की पावर -4 और इस पूरे ब्रैकेट की पावर 4. फंडा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. तो अब x की पावर 16 को भी यहाँ नहीं रखो, इसको इस न्यूमरेटर में दे दो. यहाँ dx भी है, तो न्यूमरेटर में देंगे तो x की पावर 16 है और यहाँ x की पावर 13 है, तो ये x की पावर -3 बन जाएगा, ये x की पावर -5 बन जाएगा. ये तरीका है हमको इसको सॉल्व करने का. और जो भी अब रिमेनिंग है ब्रैकेट में 2 प्लस 3x की पावर -2 प्लस x की -4, इसको टी टू टप कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट है. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -6x की पावर -3 -4 x की पावर -5, डिफ्रेंशिएशन में एक पावर कम हो जाता है dt. अब यहाँ पे आपको 3 चाहिए, x की पावर -3 तो आ गया है, 3 के लिए -2 को बाहर ले लो. 3x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -5 dx. अब आप देखेंगे ये आ गया, सेम चीज आ गया. करेक्ट है. दैट इज इक्वल टू dt. तो आपके पास में इसमें ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा -1/2. करेक्ट. dt के अपॉन में t की पावर 4. t की पावर 4 मतलब t की पावर -4 मतलब -1/2 t की पावर -4 + 1 -3 डिवाइडेड बाई -3. करेक्ट है. तो ये तो हो जाएगा 1/6. खत्म. और ये हो जाएगा t की पावर 3, तो 1/6. व्हाट इज t? t इज 2 प्लस 3x की पावर -2 प्लस x की पावर -4 और इसकी पावर 3. अब इसका सिंप्लीफिकेशन ही तो रह गया है. इसका सिंप्लीफिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम कर सकते. तो देखो कैसे करता हूँ मैं. 1/6. करेक्ट. यहाँ पे 1/2 प्लस 3/x² होएगा प्लस 1/x की पावर 4 होगा, इसकी पावर में 3 है. ठीक है. ये ब्रैकेट नीचे में है, इस ब्रैकेट की पावर 3 है, न्यूमरेटर में 1 है. गॉट इट. अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x की पावर 4 ही तो आएगा. तो दिस इज व्हाट 1/6 x की पावर 4 और इसकी पावर 3. मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको ब्रैकेट से ही बाहर कर लेता हूँ, और ये सब 1/, में चल रहा है. तो ये कैसे होगा एक्चुअली में ऐसे दिखेगा 1/x की पावर 4 यहाँ आ जाएगा, 2x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस का 1 और इसकी पावर 3 और इसके अपॉन में x की पावर 4 की पावर 3 होगा ना. x की पावर 4 प्लस पावर 3 x की पावर 12 होगा और x की पावर 12 अब यहाँ चले जाएगा. तो ये आपका आंसर होगा प्लस का सी. वेरी इजी. करेक्ट. अब देखिए, एज आई सेड दैट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी दे आर आस्किंग इन जेईई मेंस एग्जामिनेशन. एंड अब इसमें क्या है ना, आजकल थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देने लगा. दे आर नाउ गिविंग little bit twist. See over here. Now dx upon x cube into bracket 1 plus x की पावर 6. तो 1 plus x की पावर 6 की पावर 2/3 bracket I am observing bracket is there. x की पावर 6 highest power is there. So therefore this is my integration by taking common from the bracket variety. x की पावर 3 is already there. x की पावर 6 उसकी पावर 2/3 हो जाएगा, तो x की पावर 4 बाहर आएगा. तो दिस इज व्हाट x की पावर -6 प्लस का 1 और ये 2/3, ये बन जाएगा x की पावर 7. आई सेड दैट डोंट राइट x की पावर 7 इन द डिनोमिनेटर, राइट लाइक दैट x की पावर -7 इन द न्यूमरेटर.
Now what is remaining there in the bracket? Put x की power -6 plus 1 equal to t, so that -6 x की power -c equal to dt. ये आ गया x की power -7, ये आ गया dx. तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया -1/6 dt अपॉन में t की पावर 2/3. इस t की पावर 2/3 को लिखो, t की पावर -2/3. करेक्ट. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/6, t की पावर में +1 करेंगे तो 1/3. यहाँ पे भी आएगा 1/3, तो दिस इज -1/2, t की पावर में 1/3. अब t को रिप्लेस कर देते हैं. दिस इज 1/2. व्हाट इज t? x की पावर -6 प्लस का 1, इसकी पावर 1/3. सिंप्लीफिकेशन ही रह गया है, साथ में इधर माइनस भी है. करेक्ट. सो दिस इज -1/2. दिस इज व्हाट? x की पावर 6 प्लस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर. हाउ x स्क्वेयर? I have taken x की पावर 6 which is in the denominator, from this x की पावर 6 उसकी पावर 1/3, that is equal to x की पावर 2. Now this is not in this bracket, this is out of the bracket. Correct. In the denominator. So this is -1/2 का x square, x की पावर 6 plus 1 1/3 plus का c. This is your answer. But what is the last twist? ये तो है. अब ये जो पूरा है x इंटू एफ एक्स, ये है. यहाँ पे भी अब ट्विस्ट आ गया हल्का सा, जो आपको कंफ्यूज करेगा. x इंटू एफ ऑफ एक्स है -1/2x². ये आपको आंसर में दिखेगा, बट वो x इंटू एफ ऑफ एक्स नहीं पूछ रहा है. दे आर आस्किंग ओनली एफ ऑफ एक्स. तो x नीचे आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स बनेगा -1/2x³. दिस इज योर आंसर. करेक्ट है. अब खास बात क्या है? अब मैंने बोला कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी. सो वो क्या कर रहे हैं? अब इसको टिग्नोमेट्री में लेके जा रहे हैं. अब टिग्नोमेट्री में लेके जाएंगे तो क्या होगा? पहले टिग्नोमेट्रिक को मैं सब्सटीट्यूट करके उसको अलजेब्रिक में लेके आऊँगा, अलजेब्रिक में लेके आऊँगा, और ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा. उसको देखते हैं. नाउ लुक एट हियर. व्हाट इज this is JEE Mains 2020 questions, and we have solved JEE Mains 2019 question. Same variety. यहाँ x³ था, यहाँ 1 + x की पावर 6 था, यहाँ 2/3 था, यहाँ dx था. अभी भी dx ही है, बट dx के साथ में आपके पास में cos x है. सो वो टिग्नोमेट्री में है, बट ब्रैकेट इज देयर. अब टिग्नोमेट्री को पहले हम अलजेब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, अभी कॉमन नहीं लेंगे. करेक्ट है. तो क्या करेंगे? इसको हम पुट करेंगे. पुट sin x इक्वल टू टी, सो दैट cos x dx dt. तो अब आपका वो अलजेब्रिक फॉर्म दिखाई देगा. dt बाई ये हो जाएगा t का क्यूब 1 + t का 6, और ये तो आपने अभी सॉल्व किया है. सेम तरीके से आप t की पावर 6 लेंगे तो t की पावर 4 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा dt अपॉन t की पावर 7, t की पावर -6 प्लस 1 2/3. t की पावर 7 को इधर दे दो, t की पावर -7. करेक्ट है. पुट करेंगे यहाँ पुट करेंगे. अब 2 बार सब्स्टिट्यूशन है. एक बार ये पुट किया मैंने, करेक्ट. एक बार और सब्स्टिट्यूशन करूँगा. कैसे? ये पुट किया, t की पावर -6 प्लस का 1 इक्वल टू z ले लिया, -6 की पावर -7 dt इज dz आ जाएगा. एक बार और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, तो t की पावर -7 dt ये आ गया ना. तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया -1/6 dt बाई ये पूरा क्या बन गया? t z की पावर 2/3. z की पावर 2/3 को मैं कैसे लिखूंगा? z की पावर -2/3. इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो हो जाएगा z की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3. देखो ये कट के -1/2 इंटू z की पावर 1/3. अब z को रिप्लेस करूंगा t में, और t को रिप्लेस करूंगा साइन में. यही काम करना बच गया है. कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है. दिस इज -1/2. पहले z क्या है? t की पावर -6 प्लस 1.
इसकी पावर कितनी 1/3। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, टी को भी रिप्लेस कर रहा हूँ। टी क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स है मतलब 1/sin6x प्लस का 1 और इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया फिर से -1/2। देखो ये साइन की पावर 6x प्लस का 1 को डाल देता हूँ मैं पावर 1/3 में, और इसके अपॉन में साइन की पावर 6x आएगा जो 1/3 की पावर के साथ में बाहर आएगा, तो वो साइन स्क्वेयर ही आएगा ना, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस का सी। अब आप देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू दिख जाएगी, लेमड़ा की वैल्यू भी दिख जाएगी। हाँ तो हल्का हल्का ट्विस्ट तो देगा। तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई थी, एफ एक्स की वैल्यू आ गई -1/2 का साइन स्क्वेयर एक्स। ये हो गया करेक्ट है। π/3 रखेंगे, π/3 मतलब √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, 3/2 ऊपर 3 गया तो फाइनल आंसर तो -2 आ गया ना, फाइनल आंसर -2 आ गया। किसका, इसका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि लेमड़ा की वैल्यू 3 है। यहाँ कर देते लेमड़ा की वैल्यू 3 इंटू 1/, ठीक है, -2 और ये है √3/2, √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 करेक्ट, और ये फाइनली -2। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में टेकिंग कॉमन वेराइटी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पीवाई की ही है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको देखो ये कैसे बनेगा। देखो ये क्या है, जेई मेंस 2018 में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये देखो इधर ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट में इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन है, साइन की पावर 5x साइन स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 5x, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट में से कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें लगेगा, लेकिन उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल सा इसका फंडा है। वो क्या है, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं ना तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन का क्यूब एक्स प्लस का कॉस क्यूब एक्स, ये फैक्टराइज हो गया ब्रैकेट के अंदर में, और इसकी पावर कितनी है 2। ये 2 को फॉरगेट मत करना, दिस इज पावर 2 करेक्ट। तो ये तो 1 हो गया, तो ये फाइनली यहाँ डी एक्स भी है, ये फाइनली साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ है साइन का क्यूब एक्स, यहाँ है कॉस का क्यूब एक्स, और इसकी पूरे की पावर है 2 करेक्ट। हाँ ये है करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के टाइम पर आप कैसे करेंगे, हाँ ठीक कैसे करेंगे, तो एक तो आप सोच सकते हैं कि साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आ जाएगा। तो ये वापस से अपना ब्रैकेट है, ब्रैकेट से मुझे कॉमन लेना है, आउट करना है। इनफैक्ट इसको हम दूसरी वेराइटी भी बोलते हैं कि 10x और sec x क्रिएट करना है, 10x sec स्क्वायर एक्स 10x के टर्म्स में हो और sec स्क्वायर एक्स dx dt में कन्वर्ट हो जाए, ये पर्टिकुलर वेराइटी। बट अल्टीमेटली आपको इस ब्रैकेट में से cos क्यूब एक्स को बाहर लेना पड़ेगा, टेकिंग आउट cos क्यूब एक्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो सेम कॉन्सेप्ट, फंडा वही है। तो यहाँ पर यही हो गया कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन का स्क्वायर एक्स कॉस का स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स बाहर आएगा विथ स्क्वायर, तो ये कॉस की पावर 6 और ये 10 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 1 ब्रैकेट की पावर 2। अब यहाँ देखो कैसे, यहाँ से तो ये स्क्वायर हट जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कॉस की पावर 4x। अब यहाँ देखना साइन स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स इधर दे देता हूँ और एक कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर देता हूँ, तो ये tan स्क्वायर एक्स भी बन जाएगा और ये सेक स्क्वायर एक्स भी बन जाएगा। फंडा बहुत क्लियर है। तो आपके न्यूमरेटर में अब क्या दिखाई दे रहा है, आपके न्यूमरेटर में ये दिखाई दे रहा है क्या, ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स करेक्ट। और यहाँ आएंगे तो ये बनेगा tan का क्यूब एक्स प्लस का 1 का स्क्वायर। बात हो गई खत्म। अब आपने क्या किया है, यहाँ से कॉमन ले लिया है,
कॉमन लेने के बाद भी जो भी रिमेनिंग रहता है ब्रैकेट में उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। फंडा तो यही बताया था मैंने। फंडा क्या बताया था, जो भी ब्रैकेट पे अब रिमेनिंग है, मतलब 1 प्लस 10 का क्यूब एक्स को मैं पुट करूँगा। तो देखो यहाँ पे 3 tan स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो ये तो मिल गया ना, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1/3 डी टी हो जाएगा। करेक्ट, हाँ ये बात। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये डी टी बाई टी का स्क्वायर हो जाएगा। टी का स्क्वायर मतलब टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/3 माइनस आएगा यहाँ फिर माइनस और 1/t, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/t, तो यहाँ माइनस आ गया तो हो गया -1/3। टी क्या है, टी है तेरा 1 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस का सी। दिस इज योर आंसर। हो गया। तो ओवरऑल ये भी तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। Okay, this is very important. Okay, most repeated variety of integration by substitution. JEE Mains is asking the questions regularly from this topic only.